desert. Student, this is our part second video of this chapter, and today we shall clear about the next topic, that is people. Student, in this topic we shall clear about the people who lives in Sahara Desert. So if we talk about the people who lives in Sahara Desert, we can see the various groups of people lives in the extreme and harsh conditions of Sahara Desert. अर्थात कुछ ऐसे ग्रुप ऑफ पीपल है, कुछ ऐसे समूह है लोगों के जो सहारा डेजर्ट में इतने कठोर टेम्परेचर में वो सरवाइव करते हैं. These were the people are Bedouins and Tuaregs. Student, these are the example of two groups of people. One is the Bedouins and the other is the Tuaregs. ये नेटिव पीपल ऑफ सहारा डेजर्ट है, अर्थात सहारा के ये आदिम लोग हैं. Student, these were kind of nomadic tribes and they rearing livestock like goats, sheep, camels, horses, etc. अर्थात ये जो टॉरेक्स और बेडुइन्स हैं ये यहाँ के आदिम और खानाबदोश लोग हैं. खानाबदोश यानी nomadic means the people who move from one place to another in search of food, shelter and water. अर्थात ये लोग खाने, भोजन और पानी की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते हैं. अपने लाइव स्टॉक अर्थात जो उनके जीव जंतु हैं जैसे कि बकरी हो गए, भेड़ हो गए, ऊँट हो गए या घोड़े हो गए. स्टूडेंट, दे आल्सो यूज सच टाइप ऑफ एनिमल्स फॉर मिल्क, मीट, हाइड्स, देयर हेयर्स फॉर एक्सेट्रा. इन जानवरों का इस्तेमाल ये लोग अपने दूध या मक्खन, मांस, उनके चमड़े, लेदर्स के लिए करते हैं. एंड दे यूज देयर हाइड्स और लेदर्स इन मेकिंग बेड्स, स्लीपर्स, water bottles, etc., which you can see on the image. Now next, they also use their hairs or fur in making mats, carpets, clothes or blankets. अर्थात उनके बालों का इस्तेमाल या उनके जो रोए हैं उनका इस्तेमाल ये लोग चटाई वगैरह या कपड़े या कारपेट्स वगैरह बनाने में करते हैं. Now move to the next point, that is people who lives in the Sahara Desert wear a very heavy and long clothes to protect them from the harsh climate of Sahara, especially during the dust storms and hot temperature या hot weather. अर्थात ये लोग लंबे, आप इमेज में देखेंगे कि ये पूरे सर से लेकर के पैरों तक के ऐसे लंबे कपड़े पहनते हैं जो मोटे होते हैं और भारी होते हैं. और ये कपड़े इन्हें वहाँ की प्रचंड जो गर्मी पड़ती है न सिर्फ उससे बचाते हैं बल्कि वहाँ पर प्रायः तूफान वगैरह जो धूल के आंधियाँ चलती रहती हैं उनसे भी इन बेडुइन्स या टॉरेक्स जो कम्युनिटी ऑफ पीपल है उनको वो बचाते हैं. नाउ नेक्स्ट, if we talk about the important thing is the oasis. Student, you can see the image and I also mentioned in the previous video, oases are the natural source of water in the Sahara Desert and it is like a green island of a desert. अर्थात oasis जो होते हैं ये नेचुरल स्ट्रीम होते हैं which are made up after the depression of the winds which blows away the sand. अर्थात यहाँ पर जो रेत होती है उसके विपरीत जब हवा चलती है तो उससे प्रेशर बनता है और उस प्रेशर से जो वाटर है वो इमर्ज होता है वहाँ पे और एक नेचुरल सोर्स ऑफ वाटर बनता है. जहाँ पर ओएसिस होता है where we can see the greenery, we can see the different types of plants like date or we can see the other crops like rice, wheat and barley, beans, etc. अर्थात ये कुछ अनाजों की प्रजातियाँ हैं जो हमें जहाँ पर ओएसिस होता है उसके आसपास जो ग्रीनरी होती है उसकी वजह से देखने को मिलती है. Now students, the important thing is the cotton of Egypt. Student, the Egyptian cotton is the world famous cotton which is grown in Egypt, which is also a part of Sahara Desert. And we can see different types of other resources like the discovery of oil. अगर बात करें तेल की, जो कच्चा तेल होता
natural oil made them important country in the world. Now, other minerals also found in iron, phosphorus, manganese and uranium, which are also very important minerals. Now next, Sahara Desert now changed culturally in modern world, अर्थात वर्तमान में आधुनिक समाज में जो सहारा है वो अपनी पहचान, जो संस्कृति उसकी पहचान है वो धीरे धीरे बदल रही है. फॉर एग्जाम्पल, नाउ वी कैन सी द लार्ज ग्लीमिंग ऑफिसेस ऑफ ग्लास सीज्ड ऑफिसेस, buildings and high tower mosques which are important buildings in Sahara Desert. तो सहारा डेजर्ट जो है वर्तमान में काफ़ी बदल रहा है. जहाँ पर पहले सिर्फ रेत हुआ करते थे, वहाँ पर आज बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स जो शीशे की से ढकी हुई तमाम तरह की बड़ी बड़ी बिल्डिंगें देखने को मिलती हैं. साथ ही साथ लंबे लंबे मीनारों वाले मॉस्क्यू भी सहारा में देखने को मिलते हैं, जो कि उसकी पहचान को आज बदल रहे हैं. नाउ नेक्स्ट, other important things like the super highways. Now we can see the super highways instead of the crisscross camel paths, which are the traditional identity of Sahara Desert. मतलब सहारा डेजर्ट की जो पहले पहचान थी, तो वहाँ पर जो ऊँट थे वो आड़े तिरछे क्रिस क्रॉस रास्ते बनाते थे. अब उन रास्तों की जगह पर सुपर हाईवे बन चुके हैं, एंड ऑन विच वी कैन सी ट्रक्स एंड अदर हैवी ऑटोमोबाइल्स रन. अर्थात इन सुपर हाईवे पर अब ऊँटों के पहले ऊँटों के बजाय अब इन रास्तों पर ट्रक वगैरह चलते हैं. एंड आल्सो ट्रक रिप्लेस्ड द कैमल्स ऑन सॉल्ट ट्रेड. और साथ ही साथ जो कैमल्स पहले नमक ऊँटों के जरिए ढोया था, अब उसके जगह पर ट्रकों ने ले लिया है, क्योंकि यहाँ पर सुपर हाईवे बन चुका है. नाउ नेक्स्ट स्टूडेंट, द टॉरेक्स कम्युनिटी ऑफ पीपल नाउ टुडे सर्विंग एज ए गाइड फॉर द फॉरेन टूरिस्ट. अर्थात वहाँ की जो टॉरेक्स कम्युनिटी है, आज वो विदेशी जो पर्यटक आते हैं सहारा डेजर्ट घूमने के लिए, उनके वो मार्गदर्शक यानी गाइड के रूप में काम करते हैं, और इससे वो अपना सोर्स ऑफ अर्निंग करते हैं. नाउ नेक्स्ट स्टूडेंट, many nomadic herdsmen go to city for finding jobs in oil or gas operations. अर्थात अब धीरे धीरे जो वहाँ की आदिम समाज है या जो ये नोमैडिक कम्युनिटी है, अब ये धीरे धीरे शहरों की ओर मूव कर रहे हैं बेटर जॉब्स की तलाश में, चाहे वो ऑयल फील्ड हो या गैस रिफाइनरीज हो, जहाँ पर वो काम की तलाश में जाते हैं. एंड स्टूडेंट, इफ वी टॉक अबाउट द Tafilat Lake, Tafila Lake, which is located in the Morocco, which is world's largest oasis, and its area is 13,000 square kilometer. Imagine, मोरक्को में टाफिला लेक नाम का एक बहुत ही विशाल ओएसिस है, which you can see on the image, which is the world's largest, दुनिया का सबसे बड़ा ओएसिस अर्थात रेगिस्तानी जलाशय है, जो कि मोरक्को की एक महत्वपूर्ण पहचान है. The student, this is the topic now. The next topic, that is the cold desert, Ladakh. Student, there are two types of desert. One which you studied earlier, hot desert, Sahara, and that the next desert is the cold desert, that is Ladakh. Student, you know the world's largest and coldest desert, that is Antarctica, which is polar region, or which is also termed as polar desert. दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान और साथ ही साथ दुनिया का सबसे ठंडा रेगिस्तान माना जाता है. Now the cold desert of India, that is Ladakh, and the hot desert is Thar desert. So in this topic we shall learn about the cold desert Ladakh. Student, Ladakh is the word which is made up of two words, La and Dak. La means the mountain pass and the Dak means the country. It means that the mountain pass country. अर्थात जो लद्दाख है एक पहाड़ी दर्रे या पहाड़ी रास्ते वाला देश माना जाता है. And it is lies in the greater Himalayan areas, और ये जो हमारे ग्रेटर हिमालय है उस रीजन में पाया जाता है.
द साउथ विच इनक्लोज द लद्दाख रीजन, अर्थात जो इसके पूर्व में जम्मू कश्मीर, नॉर्थ में हम काराकोरम पहाड़ियों की श्रृंखला देखते हैं और दक्षिण में जंस्कार माउंटेन रेंज देखते हैं जो इसे इनक्लोज करते हैं, अर्थात इसको घेरते हैं। नाउ नेक्स्ट, if we talk about the rivers, we can see that several rivers flows through Ladakh. And among them, Indus is the most important river. The other rivers like Satluj, Chenab, Ravi, Shyok, Janskar, etc. ये कुछ अन्य नदियों के नाम हैं जो लद्दाख से इमर्ज होते हैं। Now, if we talk about the glaciers, there are many glaciers also found in Ladakh. These are Siachen, Parkachin, Rimo, Safat, Machoi, etc. अर्थात कुछ ऐसे ग्लेशियर्स हैं जो कि अभी मेंशन किया गया, ये वहाँ के इम्पोर्टेंट ग्लेशियर्स हैं जो बर्फ के पिघलने पर ये नदी के रूप में आगे बढ़ते हैं। Now next, altitude. Altitude means height. Student, the height of Ladakh is varies from place to place. We can see it is started from 3000 meter in Kargil and it is more than 8000 meter in Karakoram range. अर्थात कारगिल में 3000 मीटर की ऊंचाई से लेकर के 8000 मीटर से अधिक ऊंचाई तक काराकोरम रेंज में पाया जाता है। काराकोरम रेंज इज द रेंज of mountains of Ladakh region. Now climate, if we talk about the climate, because of the high altitude we can see very cold and dry climate in Ladakh, and because of the great height we can see a very thin air, and because of the thin air the sun's heat can be felt intensely. अर्थात अत्यधिक ऊंचाई होने की वजह से यहाँ पर जो मौसम है बहुत ही ज़्यादा ठंड और शुष्क होता है, हवा बिल्कुल पतली होती है और हवा के पतले होने की वजह से जो सूरज की रोशनी है वो बहुत ही इंटेंसली अर्थात बहुत ही कठोर महसूस होती है, चाहे वो ठंड हो या उसकी गर्माहट हो। नाउ इफ वी टॉक अबाउट द डे टेम्परेचर, स्टूडेंट, द डे टेम्परेचर इज जस्ट अबव द 0 डिग्री and in the summer, and the night temperature in the summer is below -30 डिग्री। अर्थात अगर लद्दाख के तापमान की बात करें तो गर्मियों में दिन का तापमान 0 डिग्री से थोड़ा सा ऊपर होता है और जबकि रात का जो तापमान होता है वो -30 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है, सेल्सियस तक पहुंच जाता है। आप इमेजिन कर सकते हो कि कितना एक्सट्रीम कोल्ड होता है वहाँ पर। Now, if we talk about the winter, in winter we can see -40 degree temperature, especially some of the coldest places of Ladakh, that is Dras, Kargil. These are the places which are very coldest areas. Now, it is located in the rain shadow of mountain Himalayas, so there is a very little rainfall occurred. अर्थात ये जो है हिमालय के जो रेन शेडो एरिया है, अर्थात जो बादलों को ये कवर कर लेता है ये एरिया, इस वजह से यहाँ पर हमें बहुत ही कम बारिश देखने को मिलती है। वी कैन सी 10 सेंटीमीटर एनुअल रेनफॉल इन द रीजन, अर्थात बारिश न के बराबर होती है। सो दैट इज द रीजन ऑफ इट्स barren land and also because of the extreme cold or the snowfall. Now, if we talk about area feels of freezing winds and burning hot sunlight together. अर्थात सबसे इम्पोर्टेंट और सरप्राइजिंग थिंग ये है कि लद्दाख में वहाँ के जो लोग हैं वो एक ही साथ फ्रीजिंग कोल्ड विंड्स और हॉट सनलाइट फेस करते हैं, फील करते हैं। एग्जाम्पल, एट द सेम टाइम अ पर्सन और पीपल feels both sunstroke और frost bite together। अर्थात अगर आप लद्दाख में हैं और अगर आपके बॉडी का एक पार्ट सनलाइट पे है और रेस्ट पार्ट आपका
वो शैडो में है, तो आप एक ही साथ जो आपके शरीर का पार्ट सनलाइट में है उसमें आपको एक्सट्रीम हॉट सनलाइट देखने को मिलेगी या फील होगी, और जो आपका बॉडी पार्ट्स जो शैडो में है अर्थात छाया में है उसमें आपको उसी समय ठंड या एक्सट्रीम कोल्ड फील होगी। अर्थात एक ही समय आप अपने शरीर में दोनों टेम्परेचर को फील करते हैं, जो कि लद्दाख का एक इम्पॉर्टेंट और सरप्राइजिंग थिंग ऑफ एटमोसफियर है। सो स्टूडेंट, these are the topic for today. I hope you have listened properly. If you have any doubt or any problem, you can ask or comment on my WhatsApp number. Till stay safe, stay happy. Good luck.